Hello students, welcome back to the Tantresa physics classes. Today it is the last lecture on circular motion. पहले हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया, फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया, फिर हमने एप्लीकेशन टेक्निक्स भी आपको दिए, फिर जाकर के फर्स्ट लेक्चर वाज क्वेश्चंस PYQs of previous years, questions of previous years which were asked in the previous exams for NEET. Today is the lecture of previous asked questions. I will solve all those questions which have been asked in the previous exams, but for IITs, for those aspirants which want to appear in the IIT exams. This is the last lecture. I have gradually gone from base level to the highest possible level. These are 5 lectures. Do these 5 lectures a few more times. It will not take you much time, and finally you will be prepared in circular motion. You see how I did it. I want to remind you. First, I started uniform circular motion, then non-uniform circular motion. Then I have given you application techniques given in the YouTube uploaded lectures. Then what I did is I have solved all the PYQs of previous years for NEET. Then today I am solving questions which have been asked in IIT exams. Okay? Chalo, let me. Question number 1. A car of mass m moves on a banked road having radius r and banking angle theta. To avoid slipping from the banked road, the maximum possible speed of the car is v0. Okay, the coefficient of friction mu between the wheels of the car and the banked road is. हमें coefficient of friction निकालना है. जब मैंने आपसे डिस्कस किया था बैंकिंग ऑफ रोड्स मैंने लिया था. बैंकिंग ऑफ रोड्स की वजह से ही नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट जो होता है दैट गिव्स द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज नेसेसरी फॉर मेकिंग द मोशन सर्कुलर. लेकिन बैंकिंग के साथ साथ फ्रिक्शन भी सपोर्ट करता है. फ्रिक्शन ऑल्सो सपोर्ट्स सर्कुलर मोशन, बट आई हैव नॉट इंक्लूडेड फ्रिक्शन इन दैट in the previous case. Now is the time when I will do both friction as well as banking. When I do both, then this question can be solved very easily. So, question number 1. चलो ठीक है. ये है, this is banking. This is banking, just theta here, and here it is a car coming out, you see, coming out, not like this, down or up, coming out of the plane of the board. So this is mg, this is normal reaction, and okay, this is also theta, and this is also theta, n के components, n cos theta. Here this is n sin theta. This n sin theta supports circular motion of the car. Circular motion of the car, it supports the circular motion. But now, if its velocity is higher, and this n sin theta will not support the circular motion, it is not sufficient. So the car has a tendency of moving away, readily away. Then frictional force supports. This frictional force supports. So if there is a higher velocity, it is frictional force का direction ये होगा. If the velocity is quite lower, very very less, then this car has also the possibility of coming down. So there are 2 possible velocities: maximum velocity and minimum velocity. If the velocity is lesser than minimum, then it will skidd downwards. If the velocity is greater than the maximum, then it is a possibility of skidding away. So you have to be safer on both sides of the velocity, v minimum and v maximum. v maximum के लिए frictional force का direction ये होना चाहिए. v minimum के लिए it has tendency to go down and frictional force will be opposite. But I will get the case for this, and finally I will tell you how to reverse this force to find the minimum possible velocity at which the car can negotiate the curve. Okay? चलिए, ये थीटा है. इस f का, okay, इस f is mu n. तो ये वाला कंपोनेंट इसका है म्यू एन कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट है
म्यू एन साइन थीटा। अब बताइए व्हाट आर द इक्वेशन दैट आई कैन राइट, व्हाट आर द इक्वेशन दैट आई कैन राइट? यस, फर्स्ट इक्वेशन n mu n cos theta plus n sin theta, these are the forces which provide you centripetal force mv square by r, right? And this n cos theta balances these two forces. N cos theta is equal to, yes, mg प्लस म्यू एन साइन थीटा। और जो भी होगा यही दो इक्वेशन से सारा कुछ होगा, इन दो इक्वेशन से होगा। चलिए नाउ, ओके, नाउ इट इज म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां ये इसको इस साइड लीजिए और इट इज एन कॉस थीटा, यस, माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। मैंने इसको लेफ्ट साइड में लाया। अब डिवाइड कीजिए, एन कॉमन निकालकर एन कैंसिल होगा, सो इट इज म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा is equal to m gets cancelled v square by r g, right? Now चलो इसको अब आगे ले जाते हैं, या आप लास्ट में फॉर्मूला ही याद रख सकते हैं, फॉर्मूला याद रख सकते हैं, बिकॉज इन दिस केस वी आर यूजिंग बोथ बैंकिंग एंड ऑल्सो फ्रिक्शन। Okay, now v square is equal to rg into this thing, लेकिन यहां पर आप cos से डिवाइड भी कीजिए, cos ऊपर भी डिवाइड कीजिए, नीचे भी डिवाइड कीजिए। इट इज tan थीटा, यहां डिवाइड करने से प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। हो गया आपका फॉर्मूला। तो अब आप मुझे बताइए व्हाट इज वी मैक्स, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी क्या है, अबव विच द कार विल अगेन स्लाइड। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी होगा फिर भी कार स्किड हो सकती है। वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अगर फ्रिक्शन है नहीं, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, म्यू को जीरो कर दो, यू विल गेट आर डी टेन थीटा, दैट यू ऑलरेडी नो, वो आपको पहले ही पता है। अगर म्यू के एब्सेंस में वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ आर डी टेन थीटा, वी आर डी टेन थीटा। नाउ व्हाट इज वी मिनिमम, मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी, दैट इज रूट ऑफ यही आर जी यही टेन थीटा, मगर चूंकि ये फोर्स उल्टा हो जाएगा यहाँ की ओर मिनिमम वेलोसिटी के लिए, क्योंकि अगर जब कार को नीचे आने का स्किड का खतरा है तो फोर्स उल्टा होगा, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज सपोर्ट्स। नीचे स्किड होने का खतरा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड्स, ऊपर स्किड होने का खतरा है तो फ्रिक्शन फोर्स इज डाउनवर्ड्स। सो इट इज, यहां पर माइनस कीजिए और यहां प्लस कीजिए, म्यू को उल्टा कर दो, म्यू को नेगेटिव माइनस म्यू कर दो तो हो जाएगा। ये है हमारा केस। लेकिन अब क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन था द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द कार एंड द बैंक्ड रोड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के लिए, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा इस केस के लिए। तो हाँ ठीक है, ओके। V0 स्क्वायर, ये वाला V0 स्क्वायर, क्योंकि ही सेज V मैक्स इज V0 इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू
डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो यहां पर मैं निकालना चाहूंगा म्यू। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट म्यू हियर। सो V0 स्क्वायर ये वाला माइनस म्यू टेन थीटा V0 स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी म्यू प्लस टेन थीटा, ये वाला। सो इसको लेफ्ट साइड में लीजिए, दैट इज म्यू, ये वाला म्यू, आर जी प्लस V0 टेन थीटा, V0 स्क्वायर टेन थीटा, इसको लेफ्ट शिफ्ट करने से इज इक्वल टू यहाँ V0 स्क्वायर ऐसे माइनस ये वाला इधर आर जी टेन थीटा। तो व्हाट इज म्यू? दैट इज V0 स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा डिवाइड बाय आर जी प्लस V0 स्क्वायर टेन थीटा। आंसर देखते हैं। V0 स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, आर जी प्लस V0 स्क्वायर टेन, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, ये वाला बी। अच्छा आप जरा देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। सपोज म्यू 0 है, अगर म्यू 0 होगा, देखिए म्यू अगर 0 है तो V0 स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, तो वहां से टेन थीटा निकलेगा V0 बाय आर जी, दैट इज व्हाट यू नो। अगर म्यू 0 आप खत्म करोगे, मींस देयर इज नो फ्रिक्शन, यू मस्ट, दिस इक्वेशन मस्ट रिड्यूस टू द इक्वेशन दैट यू ऑलरेडी नो फॉर द बैंकिंग सिस्टम और फॉर द बैंकिंग। दिस इक्वेशन कैन रिड्यूस वेरी इजिली, थीटा को 0 कर दो तो आपको मिल जाएगा। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन। Second question. Second question. A car of 800 kg is taking a turn on a banked road of radius 300 meters and angle of banking is 30 degrees. If the coefficient of static friction is 0.2, then the maximum speed with which the car can negotiate the turn safely is. तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है, हमें मैक्सिमम स्पीड निकालना है। अभी हमने निकाला है मैक्सिमम स्पीड स्क्वायर आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, अभी निकाला हमने इसका फॉर्मूला, डिराइव करके निकाला। ठीक, अच्छा वी मैक्स स्क्वायर या वी मैक्स रूट ऑफ, चलिए आर, व्हाट इज आर? रेडियस दिया होना चाहिए 300 मीटर्स, 300 जी 10 थीटा दैट इज 10 30 प्लस म्यू 0.2 1 माइनस व्हाट इज म्यू 0.2 व्हाट इज 10 थीटा 10 30। अब इस सब चीज को आपको सबस्टिट्यूट करना पड़ेगा, मैं सबस्टिट्यूट करके देता हूं। इट इज 3000 हियर इंटू 1030 को 1/√3 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.2 बाय √3। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ए शुड बी द आंसर, ये ए आंसर है 51.4 मीटर्स पर सेकेंड, 51.4 मीटर्स पर सेकेंड। इसको आप सबस्टिट्यूट करके, इसने √3 का वैल्यू भी दिया है 1.73, √3 का वैल्यू भी दिया है। दैट्स इट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन? A ball of mass 0.5 kg is attached to a string of length 50 centimeters. The ball is rotated in a horizontal circular path about a vertical axis
ऐसे स्ट्रिंग को अटैच मास किया तो यूं करके बॉल को आपने सर्कल में घुमा दिया। ठीक, एक्सिस जो है वो वर्टिकल है क्योंकि ये एक लाइन है जिसके इर्द गिर्द ऐसे घूमता है, ऐसे। ठीक, तो द मैक्सिमम टेंशन दैट स्ट्रिंग कैन बेयर इज 400 न्यूटन। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन रेडियंस पर सेकंड इज। तो पहले मास दिया है 0.5 kg, रेडियस दिया है 500 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻² मीटर कर दो यहां। मैक्सिमम टेंशन जो है टी मैक्स दैट इज 400 न्यूटन। निकालना क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, इस स्ट्रिंग का इस मास का एंगुलर वेलोसिटी मूविंग इन ए सर्कल। यह मैंने इसलिए लिखा कि जब कोई चीज जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो और फिर जो गिवन कंडीशंस क्या है और आपने मतलब एक इमेज पिक्चर बनाया है उसका या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका किया, तो हाफ द क्वेश्चन इज डन, हाफ द क्वेश्चन इज डन। चलिए ठीक है, तो हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालना है। देखिए कैसे निकालते। एक बात यह है कि एक स्ट्रिंग है मूव्स इन ए सर्कल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, हमें इसका ओमेगा निकालना है। आपको पता है V इक्वल टू आर ओमेगा, ये R है। तो बताइए F इज इक्वल टू M में जो है कैसे लिखेंगे आपको? F इज एक्सटर्नल फोर्स। देखो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है इस पार्टिकल पर? एक्सटर्नल फोर्स ये टेंशन है, तो ये टेंशन ओनली एक्सटर्नल फोर्स। रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इज इक्वल टू M एक्सेलरेशन V²/R या R ओमेगा स्क्वायर। ये भी मैंने दोनों चीजें आपको बताई। तो ओमेगा इज इक्वल टू T ये वाला बाय MR, इसका रूट स्क्वायर रूट में तब्दील होगा बाद में। ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट इज टेंशन 400, व्हाट इज M 0.5 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻², ये R है। ठीक, चलो जी ये ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज रूट ऑफ 400, अब ये 2 0 भी ऊपर, इसके 100, ये 0 और ये पॉइंट खत्म हो गया 25। ठीक, सो इट इज 400 इंटू 100/25, 4, इट इज 1600। तो 1600 है रूट, तो 40 आंसर निकलना चाहिए रेडियंस पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन, 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 जस्ट अ मिनट। फोर्थ क्वेश्चन, a train is moving with a speed of 12 meters per second on the rails which are 1.5 meters apart. To negotiate a curve of radius 400 meters, the height by which the outer rail should be raised with respect to the inner rails is. ऐसे देखो, एक सर्कुलर ट्रैक है और ये जो ट्रैक है इट इज सर्कुलर, तो ये जो ट्रैक है इसका बैंकिंग करना पड़ेगा फॉर सेफ निगोशिएशन ऑफ द कर्व। इसलिए जो आफ्टर रेल है, आफ्टर एज ऑफ द रेल, उसको रेज करना पड़ेगा, हाइट देना पड़ेगा। तो अगर ये है हॉरिजॉन्टल, ऐसे कुछ बाहर के ओर यूं, अगर ये ऐसे है हॉरिजॉन्टल है, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, और ये पॉइंट रेज करना पड़ेगा ऊपर। ठीक, ये पॉइंट को रेज करना पड़ेगा। ये आउटर एज ऑफ द रेल है, ये इनर है, तो आफ्टर को ऊपर लेना पड़ेगा। और ये ट्रेन ऐसे आ रही है बाहर की ओर यूं, ऐसे, ये थीटा है। कह रहा है कि ये जो ट्रैक है इट इज 1.5 मीटर अपार्ट। इसका विड्थ जो है, इसका विड्थ, हमें ये h निकालना है।
कितना ये आउटर एज रेज करना पड़ेगा टू नेगोशिएट करो। यू ऑलरेडी नो स्पीड तो दिया है v इज इक्वल टू 12 मीटर्स पर सेकेंड। यू ऑलरेडी नो v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टेन थीटा, ये आपको पता है। दिस वी ऑलरेडी नो व्हेन द what should be the angle of banking when your speed is vehicle speed is v is equal to perpendicular by base here, that is h by 1.5। ये खत्म हो जाएगा, h निकालो, h is equal to 1.5 v square by rg, substitute करो 1.5, what is velocity, that is 12 into 12 divided by what is r, radius 400 meters, what is g, 10। इसको निकालना पड़ेगा, जब निकालोगे it will be 5.4 सेंटीमीटर्स। ऐसे अब देख लो इसको सबस्टिट्यूट करके अच्छी तरह से, लेकिन ये मीटर्स में निकलेगा, बाद में आपको 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा। आंसर जो होगा वो मीटर्स में होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इन एसआई सिस्टम। और बाद में आपको क्या करना है, बाद में आपको इसको मल्टीप्लाई 100 करके सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। फिनिश्ड, ओके। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। Fifth question. If the radius of curvature of the path of two particles of the same mass are in the ratio of 3:4, two particles, radius of curvature r1 by r2 is equal to 3/4. Whatever is written, I just write it down. Word pictures. It helps you to understand things. Then, in order to have constant centripetal force, सेंटीपिटल फोर्स इज सेम, पार्टिकल 1 के लिए और पार्टिकल 2 के लिए सेंटीपिटल फोर्स इज सेम। देन देयर वेलोसिटीज मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ, हमें v1 by v2 निकालना है, बस ये है क्वेश्चन। देखो किस तरह से जब आप क्वेश्चन को वर्ड पिक्चर्स में कन्वर्ट करते हो या फिगर बनाते हो तो बहुत हद तक क्वेश्चन ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और once you can express your question into word pictures, half the problem is done, आधा क्वेश्चन हो जाता है। ये इट्स ए जनरल सेइंग। अगर आपको जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको चैलेंज हो, इफ यू अंडरस्टैंड द चैलेंज एंड पुट दैट चैलेंज इनटू वर्ड पिक्चर्स, यू कैन फाइंड ए सोल्यूशन टू दैट चैलेंज। ओके, चलिए इसको आप करते हैं। पहले मुझे बताइए सेंटीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, ये वाला। इट इज mv1 स्क्वायर बाय r1, ठीक। इसके लिए क्या है, मास तो सेम है शायद, हाँ, स्क्वायर बाय r2 सेम मास है, खत्म। तो अब जा करके बताइए v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर, ये मैंने यहां लाया, इज इक्वल टू r1 बाय r2, it is v1 by v2 is equal to root of r1 by r2। फिलहाल ठीक चल रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है फिलहाल। तो r1 by r2 is equal to root of 3/4, और ये होगा √3 ऊपर ऐसे ही, और नीचे जो √4 है that is 2। आंसर देखिए 2 is to √3, no sorry √3 is to 2, D is the answer। आया है 2024 में, आया IIT लेवल में क्वेश्चन। 29 जनवरी 1 2024 में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये है 6th क्वेश्चन। A stone of mass 900 grams, लिख लिया मास इज 900 grams, ऐसे लिखो और लगे हाथ कन्वर्ट भी करो केजीज में। Is tied to a string and moved in a vertical circle of radius 1 meter। इसको एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट करके हमने इस मास को और वर्टिकल सर्कल में इसको मूव कर दिया, वर्टिकल सर्कल में
मूव कर दिया वर्टिकल सर्कल में अंडर ग्रेविटी ऑब्वियसली। और एफ जो है हम 1 मीटर का रेडियस है, और फ्रीक्वेंसी जो है एफ दैट इज 10 रेडियंस पर मिनट, ये दिया है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोवेस्ट पोजीशन, जब यह इस पोजीशन पर स्टोन है तो इस वक्त टेंशन क्या है स्ट्रिंग में, ये क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन है। ऐसे देखो, एक स्ट्रिंग है, इसमें एक मास कनेक्ट है, आपने स्ट्रिंग को यूं किया, मास ये कनेक्ट है, ठीक, यूं 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 करके यूं करके यूं करके, और जब ये नीचे इस पोजीशन पर आता है, हमें टेंशन निकालना है, टेंशन क्या है। ठीक, चलो करते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि यहां पर फोर्सेस कितने हैं, एक तो mg डाउनवर्ड्स, टेंशन ये है, एक्सेलरेशन किस ओर है, सर्कुलर मोशन जो है एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, ये कितना कितना, वो v स्क्वायर बाय आर भी है, आपको पता है, या आर ओमेगा स्क्वायर भी है, ये भी। तो ये लिखो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए का बेस फॉर्मूला है, किसका, वो तो न्यूटन का फॉर्मूला है। अब इस न्यूटन के फॉर्मूला में हमें अपना सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट भेजना है, बट दैट इज ऑल। आफ्टर ऑल, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन एंड द नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। अकॉर्डिंग न्यूटन, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब ए जो है सर्कुलर मोशन में, ये आपको पता है, वी स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर। इससे पहले कि मैं इसको कर दूं, मैं पहले इसको ओमेगा निकालने की कोशिश करूंगा। 2 पाई एफ, दैट इज 2 पाई, व्हाट इज एफ, 10, मगर रिवोल्यूशंस पर मिनट, ये हुआ पर सेकंड। ऐसा यूनिट में जब ओमेगा निकालोगे, इट इज पाई बाई 3 रेडियंस पर सेकेंड। पर मिनट को पर सेकेंड बनाने के लिए हमने किया 10 बाय 60। तो अब बताइए, व्हाट इज एफ नेट हियर, व्हाट इज एफ नेट हियर, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, इसलिए ये टी ज्यादा होना चाहिए। तो व्हाट इज एफ नेट ऑन दिस ऑब्जेक्ट हियर एट दिस पॉइंट, एवरीबॉडी शुड नो, इट इज टी माइनस एम जी, सीधी सीधी बात, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम, इस ए को वी स्क्वायर बाय आर कर दो या आर ओमेगा स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। तो किसके बराबर टेंशन, एम जी, शाबाश, प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज एम, 900 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 इंटू 10 प्लस एम 900 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3। व्हाट इज आर, डिस्टेंस, ये वाला 1 मीटर। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई 9, ओमेगा स्क्वायर कर दिया। ये तो हो गया पाई स्क्वायर, हाँ, पाई स्क्वायर 10 ले लो, ये 10, ये 2 0 और ये खत्म हो गया, 9 और 9 भी खत्म हो गया, ये 0, ये 2 0 और ये 3 0 खत्म, 10 पर माइनस 3, इट इज 9 प्लस ये सारा 1, 10 इज द आंसर। या आंसर हो सकता है 9.8 भी न्यूटन। वजह यह है कि अगर उसने जी लिया होगा 9.8, हमें आंसर 10 आया, उसका आंसर 9.8 भी हो सकता है। देखिए 9.8 न्यूटन, हैव ए लुक। इसलिए यहाँ पाई स्क्वायर 9.8 लिया, मैंने पाई स्क्वायर 10 लिया, तो ये चीजें तो चलती रहती है। सिक्स्थ, सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, ये है सेवंथ क्वेश्चन। फिर से मैं आपको रिमाइंड करता हूं, क्वेश्चन जब पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को वर्ड पिक्चर्स में कन्वर्ट करो, पुट इट इन योर वर्ड पिक्चर्स, मेक ए फिगर ऑफ इट, राइट डाउन व्हाट इज गिवन, ताकि आपका इसका विजुअलाइजेशन कुछ अच्छी तरीके से कर सकोगे। A coin is placed on a disc, डिस्क तो बना पहले, फिर कॉइन तो यहां रखो फिलहाल, ठीक है। The coefficient of friction between the coin and the disc is mu. Mu is the coefficient of friction between the disc and the coin which is placed. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, आपने इसको रोटेट किया तो भाग जाएगा। अगर फ्रिक्शन है, रोटेट करोगे तो अपनी जगह ही रह सकता है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है, अगर ज्यादा रोटेट करोगे, फ्रिक्शन कितना भी क्यों न हो, तब भी भागेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच कीप्स इट मूविंग इन अ सर्कल।
If the distance of the coin from the center is r, the maximum angular velocity which can be given to this disc so that the coin does not slip. कितना angular velocity होना चाहिए ताकि ये जो coin है it will not slip away. अगर आपने ओमेगा उस ओमेगा से ज्यादा किया तो it will slip away. What is the maximum value of omega rotation angular velocity so that this coin does not slip away? ये है क्वेश्चन. तो this is mg, this is normal reaction. तो इसको यहां भागने का खतरा है, स्किड होने का खतरा है, इसलिए फ्रिक्शन ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये ऐसे, फ्रिक्शनल फोर्स कुछ ऐसे. तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइडेड द सेंट्रीपिटल फोर्स. द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज mu n. दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. ये है कंडीशन. ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज mu n, ये सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए. कम हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल. मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स Fc से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, कम से कम इक्वल तो होना चाहिए. या Fc सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी लेस और इक्वल टू mu n, ये भी चलेगा. दिस शुड बी लेस और इक्वल टू mu n. तो अब इससे हमें मिल जाएगा आंसर. देखिए Fc, व्हाट इज Fc? दैट इज m or omega square. Centripetal force should be less equal to mu. Normal reaction is mg. M gets cancelled. Omega square is less equal to mu g by r, or omega is less equal to mu g by r root. देख लीजिए आप, omega should be less than this or equal to. That means equal to is maximum value. लेस हो तो हो, इक्वल टू हो तो हो, लेकिन इक्वल से ज्यादा अगर हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल. इट विल सिक इट ऑफ, द कॉइन विल सिक इट ऑफ. तो इसका मतलब अगर ओमेगा आपने ज्यादा, इससे ज्यादा इक्वल करके ज्यादा, तो ये जो कॉइन है ये तो सिक इट ऑफ हो जाएगा. इट विल नॉट मूव देन इन अ सर्कल बिकॉज द फोर्स नीडेड फॉर इट अ सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अगर ओमेगा कुछ ज्यादा है, ओमेगा ज्यादा है तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, फिर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स भी उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता है. जब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स भी उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता तो दैट विल सिक इट ऑफ. सो मैक्सिमम ओमेगा मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू जी बाय आर. ये देखिए, रूट ऑफ म्यू जी बाय आर. डी इज द आंसर. 8th क्वेश्चन. 8th question. Question number 8. A small block of mass 100 grams is tied to a spring constant 7.5. Length is 20 centimeters. The other end of the spring fixed at a particular point A. The block moves in a circular path on a smooth horizontal surface with constant angular velocity of 5 radians per second. About point A, then the tension in the spring is. स्प्रिंग इज, मैं पहले स्प्रिंग तो बनाऊं. ये स्प्रिंग है और ये उसको मास अटैच. स्प्रिंग का जो लेंथ है दैट्स 20 सेंटीमीटर्स. चलो इसको लास्ट में फिर सबस्टिट्यूट करते हैं. ये पॉइंट ए है, आपने इसको सर्कल में घुमा दिया, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, सर्कल में घुमा दिया. तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो दिया है 7.5, वो भी ठीक है. मास जो इसका है, मास दैट इज 100 ग्राम्स, ठीक है. और क्या दिया है? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस मास अराउंड दिस, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस मास मूविंग इन अ सर्कल इज ओमेगा, दैट इज 5 रेडियंस पर सेकेंड. ठीक, वो भी ठीक है. हमें निकालना है कि व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्प्रिंग. इस स्प्रिंग में कितना टेंशन है, कितना फोर्स से स्प्रिंग इस ओर क्रिएट करेगा, बस दैट इज ऑल. ये करना है क्वेश्चन. देखिए, पहले जब ये सर्कल में घूमता है ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, तो ऐसे कुछ होगा. अब मास यहां था पहले, अब मास यहां पर जाएगा, एक्स स्ट्रेच हुआ ये. और इस एक्स स्ट्रेच, जब ये एक्स स्ट्रेच होगा,
When you move it, the spring will stretch a little bit. X stretch हुआ, ये length L है, और now it will move in a circle, और ये जो stretch हुआ इस वजह से force create होगा, और you know that force is kx, spring force is kx. तो ये सर्कल घूमता है इस फोर्स की वजह से. तो F is equal to m, जरा लिखिए ये फॉर्मूला. What is the net force on this mass? That is F, that is kx. And what is m is m, what is a? Okay, what is a? A is r omega square. Magar what is r? R is from here to here, that is L plus x. L plus x omega square. ये है base formula. F is equal to ma. Force is given by the stretch, that is spring force kx, and F is kx, and this is centripetal force m. This is m. This is centripetal acceleration r omega square. R is nothing but L plus x. यहाँ गलती आप कर सकते हैं, सिर्फ L लेंगे तो गलती हो सकती है. यहाँ L plus x लेना है, because now this is the r, radius of the circle in which this mass moves. यहां से x निकालना पड़ेगा. जब x निकाला फिर kx मल्टीपल k करना है मल्टीपल, तो आंसर आ जाएगा. लेकिन मैं देखता हूं कि अगर एक लाइन में हो सकता है. चलिए देखते हैं. चलो मैं कुछ करता हूं, मैं इसको एक लाइन में करने की कोशिश करता हूं. देखिए, इस kx इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर प्लस mx ओमेगा स्क्वायर. तो ये लेफ्ट साइड को लीजिए, x कॉमन निकालिए. इट इज k माइनस m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर. ये ठीक है. x इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर, ये वाला, डिवाइड बाय k माइनस m ओमेगा स्क्वायर. ठीक. x तो निकालना पड़ेगा, x हमें निकालना पड़ेगा. तो फिर k को मल्टीप्लाई करो. चलो मैं पहले x ही निकालता हूँ. x इज इक्वल टू व्हाट इज m, 100 ग्राम इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 हो गया kg. l शायद 20 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर. व्हाट इज ओमेगा? 25 डिवाइड बाय व्हाट इज k, दैट इज 7.5 माइनस m omega square. m is 100 into 10 raised power minus 3. What is omega square? 25. ठीक. तो क्या करें? x is equal to, yes, ये 3 0 खत्म. ठीक. 25 into 2 हो गया 50. ये हो गया 5 0, ये 50 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 डिवाइड बाय, चलिए 7.5 माइनस 25, ये हुआ 25 डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 रेज़ पावर माइनस 3 बाय 2.5, you go 50 into 10 रेज़ पावर माइनस 2 डिवाइड बाय, ओके, 7.5 2.5, ये हुआ 5. ठीक. ये हो गया 10, को 10 रेज़ पावर माइनस 1 बाई 10 या 0.1. अब बताइए kx किसके बराबर है? k इज 7.5 इंटू 0.1, ये हो गया 0.75 न्यूटन्स. ये है आंसर. बेस पॉइंट था ये x निकालना, स्ट्रेच निकालना. स्ट्रेच देखो, जब ये स्प्रिंग सर्कल में घूमता है, जब सर्कल में घूमता है और ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा थोड़ा सा, वो स्ट्रेच क्रिएट्स फोर्स. बाकी सर्कल का रेडियस तो वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा. सर्कल का रेडियस और वो लेंथ, जो रिलैक्स्ड लेंथ होता है स्प्रिंग का, थोड़ा सा जो ऐड हो गया तो वो सब वो सर्कल में घूमेगा. तो दिस इज द आंसर. लेट अस सी द आंसर. आंसर इज दिस. डी इज द आंसर, 0.75 न्यूटन. अच्छी तरह से चेक करो और कॉपी भी कर लो. ठीक. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9.
नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नाइन्थ क्वेश्चन। ये देखो नाइन्थ क्वेश्चन, a child of mass 5 kg is going around a merry-go-round that makes one rotation in 3.14 seconds. The radius of the merry-go-round is 2 meters. The centrifugal force on the child will be. तो ये समझो एक कैबिन है, इस कैबिन में एक बच्चा है ऐसे कुछ, और ये सर्कल में घूमता है ऐसे मैरीगो। तो 5 kg इसका मास है ऐसे, और टाइम पीरियड इज ओके 3.14 सेकेंड, बिकॉज इट मेक्स वन रोटेशन इन 3.1 सेकेंड्स, दैट इज टाइम पीरियड। एक सर्कल में जब ये राउंड करता है, एक सर्कल में जब ये राउंड करता है तो टाइम लगता है 3.14 सेकेंड्स। ये पाई के बराबर है, शायद पाई भी आगे आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करता है। He talks about, yes, its radius is 2 meters. He talks about centrifugal force. आपको जानना चाहिए, अगर यहां पर कोई खड़ा है बाहर जिसका वेलोसिटी या तो 0 है या कांस्टेंट है इसका वेलोसिटी, उसके लिए ये बच्चा सर्कल में घूमता है, उसके लिए ये फोर्स होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर ए पर्सन आउटसाइड, बाहर वाले के लिए, he moves in a circle, so there must be a force towards the center because his momentum changes. लेकिन अगर कोई उसी फ्रेम में है, कोई दूसरा आदमी यहां पर बैठा है, उसके लिए ये बच्चा रेस्ट में है, तो उसके लिए ये जो बच्चा है उस पर नेट फोर्स 0 है। तो ये जो अंदर वाला आदमी है, he is in the accelerated frame of reference, he is in the rotating frame of reference. For him there will be 2 forces, real force that is Fc जो इसके लिए भी है, और ये कहेगा इस पर दूसरा फोर्स है अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CF फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये थोड़ा सा क्लियर करो, और ये इस पर बहुत सारे लेक्चर आते हैं नेट पर। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके लिए होता है जो रोटेटिंग फ्रेम में होता है। ये जो दूसरा आदमी यहां बैठा है, इसके लिए 2 फोर्सेस है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी, क्योंकि उसके लिए बच्चा रेस्ट में है, उसके लिए बच्चे पर कोई नेट फोर्स ही नहीं है, उसके लिए बच्चे पर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। लेकिन आउटसाइड पर्सन जो है, जो रेस्ट में है या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेस्ट एंड कांस्टेंट वेलोसिटी मींस द सेम थिंग, वो कह रहा है कि इस पर नेट फोर्स है, क्योंकि उसके लिए बच्चा जो है सर्कल में घूमता है, इसके लिए इस पर फोर्स होना चाहिए, नेट फोर्स, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज Fc। लेकिन जो अंदर बैठा है उसके लिए बच्चे पर कोई नेट फोर्स है नहीं, तो इसके लिए बच्चे पर ये फोर्स भी है और ये फोर्स भी है, ठीक। तो FCF निकालना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो भी इसी के बराबर है, क्योंकि जब अपोजिट है तभी तो 0 हो जाएगा। तो दैट इज M R ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज M? 5। व्हाट इज R? 2। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? 4 स्क्वायर बाय T स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बाय T स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाय F। तो T स्क्वायर इज, वो भी पाई है, पाई स्क्वायर ये खत्म हो गया, T इज पाई, सो इट इज 4 8 40 न्यूटन आंसर। ये देखो, ये सीखना पड़ेगा आपको, व्हेन यू आर इन द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपके लिए क्या फोर्सेस है, आपके लिए कुछ एडिशनल फोर्स होते हैं, तो वो आप देख लो अच्छी तरह से। और इन द मीन टाइम शायद मैं इस पर भी लेक्चर भी देता हूं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। 10th क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन देख लीजिए। 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A coin is placed on a rotating table. Again, एक rotating table है, इस पर coin है। Imagine करो, if this table rotates faster with more higher angular velocity, तो ये तो skid off हो जाएगा। इसका मतलब ये जब रोटेट करता है कॉइन टेबल के साथ, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो टेबल और कॉइन के दरमियान होता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू कॉल एज इट इज सर्कुलर मोशन। तो ये डिस्क है, इस पर एक कॉइन है,
किस पर, 1 सेंटीमीटर पर, और ये अच्छी तरह से सर्कल में घूमता है। इफ द एंगुलर स्पीड इज हाउ, ये एंगुलर स्पीड ओमेगा है। अगर एंगुलर स्पीड को आधा किया जाए, बताइए ये डिस्टेंस जो है किस डिस्टेंस पर ये मतलब स्लिप हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब अगर आहिस्ते से आप इसको रोटेट करोगे, इट कैन आप इसको और भी दूर ले सकते हैं, सो दैट इट मूव्स इन अ सर्कल। क्योंकि जब दूर लोगे तो आर बढ़ जाएगा, तो यू नीड मोर सेंटीपिटल फोर्स, सॉरी यू नीड लेस सेंटीपिटल फोर्स टू कीप दिस इन अ सर्कल। तो अगर ओमेगा पर 1 सेंटीमीटर पर स्किडिंग डिस्टेंस है, ओमेगा बाई 2 अगर आप करते हैं, अब ओमेगा बाई 2 उस पर स्किडिंग डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। तो अभी हमने किया एक क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा, अभी उसमें हमने ओमेगा निकाला, रूट ऑफ और जी बाई म्यू, शायद, हाँ ये निकाला, और जी बाई म्यू ही था क्या, कि म्यू बाई आर जी। चलो मैं भूल गया, मैं नए सिरे से करता हूं। तो पहली बात यह है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड, म्यू एम जी इज इक्वल टू, हाँ, एम इसका मास और ओमेगा स्क्वायर, ठीक। सेम म्यू एम जी दूसरी बार इस पर इज इक्वल टू एम, वही आर प्राइम, नया आर, ये आर 1 सेंटीमीटर, ओमेगा अब हाफ है यहां पर, ओमेगा बाई 2 होल स्क्वायर। इक्वेट कर दो दोनों को इक्वेट कर दो, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ठीक, खत्म। ओमेगा स्क्वायर खत्म, आर डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर, तो 4 टाइम्स आर इज इक्वल टू 4 इंटू आर इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज 4 सेंटीमीटर इज द आंसर। अब ये 4 सेंटीमीटर पर स्किड ऑफ होगा, 1 सेंटीमीटर तो बचेगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर इसको स्किड होने का खतरा है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, क्योंकि आपने ओमेगा को कम किया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए 11th क्वेश्चन। A vehicle of mass 200 kg is moving along a level curved road of radius 70 meters with an angular velocity of 0.2 radians per second. The centripetal force acting on the vehicle is, कह रहा है कि रोड लेवल्ड है, लेवल्ड रोड, ये सर्कल में घूमता है, ऐसे सर्कल में यूं, लेवल रोड से सर्कल में घूमता है। तो हाउ मच सेंटीपिटल फोर्स इज नीडेड, हाउ मच सेंटीपिटल फोर्स इज नीडेड। तो इसने कहा लेवल रोड है, तो ये कैसे मूव करेगा सर्कल में, अगर सर्कल में तो फ्रिक्शन तो दिया नहीं है, और फिर बैंकिंग भी नहीं है, तो सर्कल में कैसे घूमेगा। इसलिए यहां होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल इज, गलत क्वेश्चन है, क्योंकि सेंटीपिटल तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना एक्सटर्नल एजेंट को, लेकिन रोड लेवल है, बैंकिंग तो है नहीं जो इसको वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन की बात ही नहीं करता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, तो जो इसको स्किड ऑफ करेगा, तो दैट इज एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एम और ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज एम, 200 kg, व्हाट इज आर रेडियस 70, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2, ठीक। ये दो पॉइंट्स खत्म होकर के इसके साथ खत्म, 2 2 4 2 8 56 0 न्यूटन आंसर। ये देखो सी इज द आंसर, राइट, ओके। सो बेसिकली अगर ये सेंटीपिटल फोर्स की बात कर रहा है तो प्रोवाइड कौन करेगा, सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करना चाहिए, या तो बैंकिंग से होगा सेंटीपिटल फोर्स, या फ्रिक्शन होना चाहिए, ताकि सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड टू मूव द व्हीकल इन अ सर्कल पाथ, राइट। चलिए, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11th हो गया शायद,
11th हो गया, 12th question. 12th question. A body of mass 200 grams is tied to a spring constant 12.5 Newton per meter, while other end of the spring is fixed. If the body moves about O in a circular path on a smooth horizontal surface with constant angular velocity of 5 radians per second, the ratio of extension in the spring to the natural length will be. Question कुछ ऐसे है, ये स्प्रिंग है, मास कनेक्टेड है, सर्कल में घूमता है, ओमेगा दिया हुआ है कितना 5 रेडियंस पर सेकेंड और स्प्रिंग कांस्टेंट भी है 12.5 और मास इसका है, मास भी दिया है दैट इज 200 ग्राम्स। कह रहा है कि जब ये सर्कल में घूमेगा, जब ये स्प्रिंग मास लेकर के सर्कल में घूमे थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, सो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ स्ट्रेच लेंथ टू ऑरिजिनल लेंथ, ये क्वेश्चन है। स्ट्रेच कितना हुआ और ऑरिजिनल तो पता ही है, अगर हो पता, आई डोंट नो वेदर ही हैज गिवन इट और नॉट, नहीं दिया नहीं है, तो स्ट्रेच लेंथ एंड ऑरिजिनल लेंथ उनका रेशियो निकालना है। ठीक है निकालते हैं, लेकिन दिया है सारा कुछ, मैंने लिखा है क्या, स्ट्रेच लेंथ मतलब x/l निकालना है, मैंने लिखा है यहाँ पर। चलो कुछ और भी दिया हो तो वो भी, ये देखिए मैं समझाता हूँ। पहली बात यह है कि लेट मी सपोज स्ट्रेच लेंथ इज x, तो centripetal force will be provided by this stretch length. How much force this stretch length creates toward the center? kx. बताइए, अगर ये लेंथ l है, ऑरिजिनल लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग l है, तो बताइए क्या लिखूंगा मैं इस F = ma के लिए, मैं बताता हूं। देखिए व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला F, सी द नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, हैव अ लुक, सब लिखेंगे kx, everybody would write kx, the only force acting. M is m, who will write good expression for a acceleration? r, ये वाला r ओमेगा स्क्वायर, मगर r is x plus l ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसी इक्वेशन से होना चाहिए, बस बेस इक्वेशन लिखो अच्छी तरह से हो जाता है। तो अब क्या करूं मैं, देखो अब तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, चलो k डिवाइड बाय m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस l बाय x। ये देखो ये x यहां लाया और m ओमेगा से यहां लाया, इजी हो जाएगा इससे। ये हो गया 1 प्लस l बाय x। व्हाट इज l बाय x? k बाय m ओमेगा स्क्वायर, ये वाला -1, मगर निकालना है x/l। चलो कम से कम अगर ये निकलेगा तो वो फिर आसानी से कर सकते हैं, फिर वो भी आसानी से कर सकते हैं। l/x ही निकाल, चलो मैं निकालता हूं l/x। k, व्हाट इज k 12.5। व्हाट इज m? m इज 200 ग्राम्स इंटू 10⁻³ ओमेगा स्क्वायर 25 -1 कर दिया, ये सबस्टिट्यूशन कर दिया और -1, इट इज 12.5 2 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 50 ये खत्म 5 -1, क्योंकि 3 0 इन 3 0 से खत्म हो जाएगा ये 50 करके। सो l/x किसके बराबर, 5 2 = 10, 2.5 -1, ये हो गया 1.5, तो l/x is 1.5, l/x is 1.5। What is x/l? That is 1/1.5, इसका उल्टा, that is 10/15, 2/3, 2:3 answer, 2:3 is the answer, B is the answer। Question easily done। 13th question, चलो 13th क्वेश्चन कहां पर है, ऊपर ही शायद, ये देखो 13th क्वेश्चन। A car is moving with a constant speed 20 meters per second। कम से कम ये कार तो बना पहले,
20 meters in a circle. It moves in a circle. अच्छा, velocity is 20 meters per second. It moves in a circle. आप रेडियस, उस सर्कल का रेडियस क्या है? उस सर्कल का रेडियस है 40 meters. ठीक. Above is suspended from the roof of a car. एक कार है, इसके रूफ से एक पेंडुलम मतलब सस्पेंड हो रहा है, पेंडुलम ऑफ मास m. The angle made by the string with the vertical is, g को 10 ले लो और स्पीड इज 20 और रेडियस इज दिस 40. मैं समझाता हूं आपको ऐसे. देखो एक कार है, इट मूव्स इन अ सर्कल, इट मूव्स इन अ सर्कल. जो इसके एक पेंडुलम सस्पेंड है फ्रॉम द सीलिंग. ठीक. जब ये सर्कल में घूमता है, ये जो पेंडुलम अंदर जाकर के पेंडुलम है, इट विल एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर. It will experience because it is in the accelerated frame of reference, because it is in the rotating frame of reference. तो इस पर होगा एक फोर्स. कितना फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर. यानी कि अगर ये वर्टिकली सस्पेंड हो रहा है ये पेंडुलम, इट विल शिफ्ट टू अ साइड अवे फ्रॉम द सेंटर. सेंटर के अवे मतलब ऐसे कुछ, अगर ये इस सर्कल में घूमता है ऐसे, तो ये यूं हो जाएगा ऐसे. ये थीटा, हमें देखना है थीटा किसके बराबर है. बस पहली बात यह है कि जब ये यहां आएगा तो हम सर्कल ये है, ये रेडियस ये है, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में यूं है, यूं एक्सेलरेटेड फ्रेम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूं हो रहा है. तो जो यहां पर आदमी खड़ा है उसके लिए इस पर ये फोर्स है mr⍵², या mv²/r कर दो क्योंकि v दिया है, mv²/r. और एक फोर्स है mg. ठीक. और ये टेंशन T है. इस पर तीन फोर्सेस है, टेंशन, mv²/r एंड mg. Under these three forces it is in equilibrium because for the person inside it is at rest. लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन. डिफ्लेक्ट हो करके ये फोर्स क्रिएट होगा, ये और ये. तो अंडर दीज थ्री फोर्सेस इट इज इन इक्विलिब्रियम. अगर ये थीटा है, समझो ये भी थीटा है. और बताइए टेन थीटा किसके बराबर होता है इन इक्विलिब्रियम? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस. ये वाला फोर्स बाय ये वाला फोर्स. दैट इज हाउ मच? mv²/r डिवाइड बाय mg. m gets cancelled, वही v²/r जी यहां भी आएगा. और टेन थीटा इज इक्वल टू, बताइए v², दैट इज 400 इस v का स्क्वायर. व्हाट इज r? r कितना है? 40. ये वाला 40 रेडियस. व्हाट इज g? दैट इज 10. ये तो हो गया 1. टेन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू π/4. आंसर. इतना एंगल ये डिफ्लेक्ट होगा. वर्टिकली ऐसे डिफ्लेक्ट होगा. थीटा इज इक्वल टू π/4. ये हो जाता है जब कोई चीज सर्कल में घूमेगा, उसमें जो भी लटकता कोई चीज है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से. π/4 इज द आंसर. हैव अ लुक. कोई और बचा क्वेश्चन? नहीं, सारे क्वेश्चन हमने किए. शायद 14th भी है. नहीं, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन. इसमें 13 क्वेश्चन थे. दीज क्वेश्चन वेर आस्क्ड एट डिफरेंट IIT एग्जाम्स इन इंडिया. You do these questions and try to solve them your own way and get some help from the solutions, from these solutions that I have shown you here on the board. And continue to watch my lectures. I am continuously uploading lectures for these NEET and IIT aspirants. And from tomorrow I am starting a new chapter. उसका भी ये होगा, पहले बेस, फिर एप्लीकेशन टेक्निक्स, फिर नीट के क्वेश्चंस, फिर IIT के क्वेश्चंस. बाज़ाब्ता in a consistent, in a systematic manner, I'll be explaining things, and probably I'll be starting frictional force tomorrow. Thank you.